suppose I have the fourth shell. Can you please tell me what are the permitted values for L? Tell me. 0 to n minus 1. 0, 1, 2 and 3. That means we have 4s, 4p, 4d and 4s options. What about the m values? If you take 3, it is minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. How many values? 7. So 4f is having 7 orbitals. And then we have 4d. 4d is having how many orbitals? 5. 4p, 3, and 4s, 1. So how many total? How many orbitals are there in n is equal to 4? That means 4 shell. 7 plus 5, 12, 13, 14, 15 and 16 orbitals. Alright, so we have seen that inside the shells there are subshells and inside the subshells we find orbitals. Okay. Now let us fill the electrons in these orbitals. So for that we have to fill according to we need to remember 3 principles. The first one is Ohm principle, then we have Pauli's exclusion principle, and then Hund's rule of maximum multiplication. So what Ohm principle says, it's like we know that when we go higher, like for example n is equal to 1, then we move to n is equal to 2, so the energy keeps on increasing. Similarly, the orbitals are also arranged in the increasing order of energies. So let us see 1s. So we do not have 1p, then 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. Then we don't have 1p, but we have 2p. We do not have 2d. We have 3p. We have 3d also. We have 4p, 4d, and 4f also. Similarly, we have 5p, 5d, 5f, so on and so forth. Then we have 6p, 6d, 7p, not required. Okay, so increasing order. So 1s followed by 2s, then we have 2p, 3s, 3p, 4s, then 3d, 4d, 5p, 6s, 4f, 5p, 6p, 6s and 5f and 6d. So we can get 2 types of questions from this. Either the increasing order, आपको 4 orbitals दे देंगे, you need to arrange them in the increasing order. Or they can give you 2 and ask information regarding them, that between 3d and 4s which one is having more energy and why okay, but yes, they can be in the case of assertion and reason, that 3d is having more energy than 5s, and then we have the assertion then reason, then you need a statement one is correct and not correct, okay, all that stuff. This is the same. Now, so basically the lower 1s is having the lowest energy, followed by 2s, then 2p, then 3s, then 4s, 5s. और अब आप देखो now f इसके भी बाद आएगा. उसके बाद suppose if I ask you that between 4s and 3d which one is having more energy? 3d, more energy. 3d. So basically we can use n plus l rule also. But for n plus l value for 4s is n is 4 and for s l is 0. So we have this. And for this 3 plus. Sir, yes. अब अगर हम 1s से 8s की तरफ 1s से 8s की तरफ तो जो वहाँ पे जो उसके वो होगी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज होती रहेगी. जैसे कि अभी आपने 4s और 3d का एग्जांपल लिया तो उसमें आपने बोला कि 3d बहुत ज़्यादा है. 3d बहुत ज़्यादा है. की एनर्जी ज़्यादा है.
Yes. देखो अगर मैं बोलूँ कि प्रिंसिपल कौन, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी आपके 3D सीरीज है आपकी स्कैंडियम, देन वी हैव टाइटेनियम, वैनाडियम, उसमें हम पहले 4s को फिल करते हैं और फिर 3D को। क्यों? Because 3D is having more energy, so it is filled later. Now why it is having more energy? उसका भी reason आएगा अभी, ठीक है? अच्छा, so this is 3 plus and D is 2. L is equal to 2. This is 4. This is 5. Which one is having more value? 5. 5. So, now, if I have 4p and 3D, what is 4p? 4 plus 1. This is 5, and this is 3 plus 2. This is also 5. Up. No. उसके बाद आपको देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Since the value of principal quantum number 4 is greater than 3, then 4p is having more energy. If n plus l values are same, then you need to look for the principal quantum number. That's ठीक है? Okay. Principal quantum. Next we have Pauli's exclusion principle. Basically, Pauli's exclusion principle says that in an orbital, maximum of 2 electrons can be accommodated, and these 2 electrons are having opposite spins. That is why it was required to introduce you with the 4th quantum number. Yes, and also that 2 electrons cannot have the values same for the 4 quantum number. They can be same for 3 n, l, m, but that spin is incommensurate, be different. Okay, one is we are considering one is moving, yes. So one we are writing spin up, other is spin down. Okay. Then we have Hund's rule of maximum multiplicity. These formulas you do not require. Then we have Hund's rule of maximum multiplicity, which says that pairing of electrons. For example, if I have P5 or suppose P4. If I have P4, so basically I cannot write P4 like this. This is wrong. I cannot write it like this. Definitely wrong. Both are with the same spin. It says that firstly the orbitals are singly occupied and then the pairing starts. Firstly all the orbitals are singly occupied and then the pairing starts. Okay. Now the important part, writing the electronic configuration. Just very quickly. Very quickly. Start with hydrogen. What is it? The first, it is having 1 electron. And what is the first, the orbital of least energy? 1s. So this is 1s. 1. Then we have, which is 1s. Then we have 1s. 1s3 can't be there because S is having 1 orbital. 1 orbital can accommodate 2 electrons. So definitely we need 2s1. Then we have beryllium. 1s2. Then we have boron. 1s2. Then we have loopy. Then we have nitrogen. 1s2. 2s2. 2p. Then we have oxygen. 1s2, 2s2, 2p, 4. Then fluorine. 1s2, 2s2, 2p, 5. Then the first noble gas, which is the second noble gas, which is 1s2, 2s2, 2p, 6. Then we have sodium. Instead of writing it all, can I write it neon, which covers the 10 electrons, and then we have 3s1. Can I? Then we have magnesium. Neon covers 10 electrons, 3s2. Then we have aluminium, neon, 3s2, 3p, 1. Then silicon. Scandium is a deep block. 3s2, 3p, 2. Then phosphorus, neon, 3s2, 3p, 3p, 3. Then sulfur, 3s2, 3p, 3p, 4, because it belongs to oxygen family. Then we have chlorine, neon, 3s2, 3p, 5. Then
neon, 3s2, 3p, 6. Then can I write argon now? Yes. See, it covers 18, and then we have 4s1, calcium, argon, 4s2. Then we have argon, 4s2 is complete, right? Then we have 3d1. अरे 3d1. अच्छा देखो. ठीक है. 3d is filled later, but while writing, please write 3d first. 3d1, 4s2. Okay, because principal quantum number is 4, maximum principal. Then we have titanium, argon, 3d2, 4s2. You can like this is 1, this is 1, this is 2, this is 2. ठीक है. अपने फिट बना लेना. This is vanadium, argon, 3d, 3, 4s, 2, then chromium, argon. अभी ऐसे लिखो 3d4, 4s, 2. ठीक है. अभी स्टार मार्क कर लेते हैं. क्योंकि अभी सबकी ट्रिक यही बताइए ना कि 1 को 1 से रिवाइज करो. ठीक है. You can remember it like that. तो 4 को 4 से ही करवाइज. Then we have argon, 3d5, 4s2. Then we have iron. Then nickel, copper. Copper. Okay. Now, I have star marked 2 of the elements, 24 chromium and 29 copper. That means, see, this should have been the electronic configuration. Like, I'm taking the example of chromium first. This should have been the electronic configuration as per the usual trend, right? Right? Yes. But I'm saying that this is expected. But what is the real one? It is argon, 3d5, 4s, 1. You know why? Because say. Tell me. Right? Half-filled orbital is more stable. Half-filled orbitals. No, not only d orbitals. Half-filled orbitals are stable, just like fully filled orbitals. चलो ये तो क्या बात है? This is wrong. This is right. But why? ठीक है, half-filled orbitals. We can write कि half-filled orbitals are as stable as fully filled orbitals. That is why अब ऐसे करने से we have exactly half-filled D and half-filled S. ठीक है, here I had fully filled D, but it was not even half-filled. चल, okay, wait, let me write it first. अगर मैं ऐसे लिखूँ 3d4, 4s2 को भी छोड़ दूँ, क्योंकि 4s2 तो कॉमन ही है. अभी होता 3d4 और 3d5 को कंपेयर करते हैं. ठीक है, and then we have d5. अगर कोई लेमैन है तो देख के कहेगा अच्छा क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैंक है, यहाँ पर ये सिमेट्रिकली फिल्ड है. ये तो बोलेगा कि यहाँ सिमेट्रिकली फिल्ड है तो शायद सिमेट्री जहाँ पे सिमेट्री आने वहाँ स्टेबिलिटी तो आएगी. ठीक है. तो एक ही होगा क्या मोर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट अगेन व्हाई? ठीक है, सिमेट्री आ गई, यहाँ पे इतना सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी. क्यों? अच्छा आपको ये तो पता है कि when I say stability it means अच्छा lesser energy and more symmetry. तो lesser energy more symmetry means more stability. ठीक है, तो अब symmetrical distribution है तो stability है. Energy का concept कैसे लेकर आए? देखो I told you that
these blocks, I have shown them adjacent to each other. It means that they all are degenerate. That means they have equal energies. When they have equal energies, can I say that this electron can change its position? Because all these boxes are of equal energies. Can I say this particular? Okay, let us see here first. Can I say this first electron can exchange its position with this one, and with this one? Yes or no? Yes. Yes. So how many exchanges are possible for the first electron? For this? 3. For this? 2. For this? 1. कितने होंगे टोटल? इसके लिए भी बोल दो, इसके लिए नहीं बोल दो। The first electron के लिए बोल दे। First electron के लिए कितने exchanges possible है? 6. और here? 4. And for the second one? 3. For the third one? 2. For the fourth one? 1. कितने हो गए? 10. 10 exchanges. And here? 6 exchanges. कहाँ पर exchanges जाता है? 25. Whenever one exchange takes place, there is a release of energy, and that energy is called exchange energy. That energy is called exchange energy. Can I say more energy is released in here? And when energy is being released, can I say the energy of the system is going down? And if the energy of the system is going down, that means it is leading to state. Can I say this is more stable? And same goes in the case of copper. So please remember these. Is this called hyperconjugation as something? No, this is exchange energy. See, whenever one electron is exchanging its position, there is a release of energy. Okay? And release of energy, so it means the energy is released due to 10 exchanges, the energy is released due to 6 exchanges. Okay? Now obviously you don't have to take it reverse क्योंकि हमने already वो उसको front वाले में consider कर लिया, तो reverse में तो अब नहीं, तो 10 exchanges, 6 exchanges. ठीक है? More exchanges, more of the exchange energy is released, ठीक है? And hence the energy of the system goes down. ठीक है? All right. And this is what is written over here. Just a second. Now the important part comes. This is part number 4. Now the important part comes. Let me save it. Yes, is it clear? Yes, Gayatri, Bhavika, Anjana, Shireen, Manal. Yes, sir. Clear. Okay. Yes, sir. So this is. Sir, Anji. so आपको first chapter कराना है. करा. Today is 3. Yes. Coming to shapes of the orbitals. Now, if I talk about the s orbital, can you please tell me what is the shape? Spherical. Spherical. This is spherical. This is my nucleus. Okay, this is spherical. Now, so you are saying that this is spherical. Can I? If this is spherical, then obviously this is going to be symmetrical. And whenever I use the word symmetrical, I represent it by small g. Small g is Gillen. जैसे CF SC जब हम निकालते हैं उसमें हम लिखते हैं T2G EG. Yes. So that G is this G only. It's symmetrical, which talks about symmetry. So this is basically Gillen. Okay. So this is symmetrical. This is spherical. Okay. All right. If I talk about the p orbital, can you please tell me what is the shape? Downward shape. Downward shape. Yes. This is my px. This is my py. And I will write this. These are mutually perpendicular. This is my nucleus. And represent. These are the phases, not the charges. These are the phases. Okay. If I start from here, from the nucleus, if I go this side, what I see? Plus, not charge. It's a phase. Positive phase, negative. And if I go backwards? Negative. No, but what phase basically telling you about the symmetry or asymmetry. So this is not symmetrical. Here, if you are going, you are finding plus.
here you are finding minus. Whereas here अगर आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ आपको प्लस ही मिलेगा. तभी तो मैंने इसको spherical बोला, symmetrical. तो इसका मतलब ये नहीं है symmetrical, not symmetrical. अगर not symmetrical है, so I represent it with U. U is ungenerate. ठीक है. तभी आपने कभी किसी अच्छी बुक में अगर देखा हो तो इसको PU भी लिखा रहता है. उसका मतलब यही होता है PU से कंफ्यूज नहीं होना. उसका मतलब ये unsymmetrical, ungenerate. ठीक है. So this is my px. If I take this as x, this is y. This is my py. ठीक है. And this is my pz. Then the shape is dumbbell shape. What about d orbital? Double dumbbell. Double. This is my first. This is the nucleus in the center. Now this is my first one where the loops are positioned in between the axes. Okay. So if I represent it plus, this is also plus, minus, minus. This means this is highly symmetrical. This is symmetrical. That is why we write T2G, EG. Okay. This is my dx prime. Then similarly I have d, y, z. If I take this as y, this is z. Loops are again positioned in between the axes. Now this is important because once you understand the shapes, you will tell me the nodes also. Okay. So again, now it's up to you. You can write this as minus, this is plus. Because like I said, these are not the charges. This is just the face. Okay. So this is my. If I take this, this dx. Then I have where the loops are positioned along the axis. This is dx square minus y square. And then we have, if I take this as z, and a ring in the xy plane. Okay, this is my D. And I don't know, we do not talk about the F orbitals because they are highly diffused. D are also diffused, but F are even more diffused. Now see, when I say diffused, it means that here the electron density is localized in a sphere. Here the electron density is dispersed. देखो इस लूप में बीच में कहीं नहीं है. तो dispersed हो गया. The electron density, electron cloud, that is dispersed. Here also we can say it is somehow delocalized. It is somehow localized. ठीक है. इसमें भी है. लेकिन यहाँ पे कितना ज़्यादा free space बीच में available है. इसका मतलब highly dispersed. F में high और भी ज़्यादा dispersed. Diffused है. अब देखो. Since we have done this, now Schrodinger came into picture. Basically, we have de Broglie's wavelength and we have Heisenberg uncertainty principle. Now, Schrodinger came up with the equation that we have a wave. The wave is following certain equation, which we call Schrodinger's wave equation. Okay, which is, if I write it in three directions, then this is double differential. I'll tell you what is psi. This is my double differential equation, which is Schrodinger's wave equation. एक बार तो equation पूछे थे इसमें से कौन सी Schrodinger wave equation? तो ये है. ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना. उसी में गड़बड़. मतलब 4 बार उसी में दिक्कत थी. हाँ, प्लस माइनस. ठीक है. देखो. सारी चीज आपको पता है psi को छोड़ के phi तो m is mass of an electron, h is the Planck's constant, E is your total energy, which is kinetic plus potential, and V is your potential energy. Okay, and this is 0 to 0. Now, what is this psi? Psi is basically what we call wave function. It's like जैसे if I ask you that add
5 plus 3. So you say it is 8. So this plus is basically a function. Yeah, function for addition. Similarly, we have psi, which is a wave function for this wave, for a wave associated with the orbital. So this is my wave function. Now, this psi is not having any physical significance. As such, अगर आप मुझसे पूछो कि psi क्या है, तो मैं नहीं बता सकता. It's just a mathematical function जिसकी values मुझे जब इस equation को मैं solve करता हूँ double differential equation को, then I get. ठीक है? So this is not having physical significance. It's just a mathematical function. Physical significance. और इसलिए भी नहीं है इसकी physical significance because its value it can have plus or minus. It can have both the values. ठीक है? मतलब its value can be plus or minus. ठीक है? और zero also. अच्छा. So when it is not having any physical significance and it's just a mathematical function, जब आप इसको solve करते हो आपको values मिल जाती है, तो फिर physical significance किस चीज़ की है? Physical significance है if I square it. Square का मतलब है since you have learned the complex numbers, basically square का मतलब ये है कि इस psi को मैं इसके complex conjugate के साथ multiply करता हूँ. तो वो क्या हो जाएगा? Psi square. Now this psi square is having a physical significance. क्या? पहली बात psi square negative नहीं होगा. Psi square तो positive ही होगी सारी values. इस psi square की physical significance है. I am calling this as probability density. What is this? Probability density. It means it tells you about the probability of finding the electron. सर मतलब जो psi है वो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ हो सकता है. लेकिन psi स्क्वायर से मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती. अगर मैंने इसे स्क्वायर कर दिया तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसकी वैल्यूज मैथमेटिकली ठीक है, बट फिजिकल एनवायरनमेंट में मैं कैसे उसको आपको समझाऊं. तो अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने के बाद जो मुझे मिलेगा वो है उस पॉइंट. अभी मैं ग्राफिकल जब मैं समझाऊंगा सारे ग्राफ्स तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या इसका मतलब है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है. देखो ये बता रहा है कि अगर कोई रीजन है उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय साई स्क्वायर. ठीक है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय साई स्क्वायर. देखो क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो पॉजिटिव ही होगी. देखो अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ 1s ऑर्बिटल कि 1s ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है. देखो ये मैं समझाता हूँ ग्राफ से. यहाँ पे मैं ले रहा हूँ साई स्क्वायर, ठीक, और यहाँ मैं ले रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये है मेरा न्यूक्लियस. ये क्या है? ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 1s ऑर्बिटल. देखो जब इसको ग्राफ को सॉल्व किया गया, मतलब इक्वेशंस को सॉल्व किया गया, साई की वैल्यूज आई, साई की वैल्यूज का हमने स्क्वायर किया और जब उसको डिस्टेंस से किया तो मेरे पास कुछ ऐसा लिखा. इसका मतलब क्या है? अब मैं समझा. अब आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ आएगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1s को ड्रॉ कर लेता हूं. ये मेरा 1s, ये न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस है. Can I say that this is probability density? Can I say the probability of finding the electron is maximum near the nucleus? इसका मतलब न्यूक्लियस के पास, ये तो 1s हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. उसको मैंने थोड़ा डार्क दिखा दिया. अगेन आई एम सेइंग देयर इज नॉट अ डिफाइंड बाउंड्री कि उस बाउंड्री के अंदर ही आपको मिलेगा. इट्स एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है. और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग. तो जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी इज डिक्रीजिंग. समझ आया? तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है? नियर द न्यूक्लियस. अच्छा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिले. प्रोबेबिलिटी है, मिल सकते हैं. हाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नियर द न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है. इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. इसमें नहीं बताऊंगा. अभी 0 होने वाली है. नेक्स्ट जब हम 2s पे आ रहा हूँ ना मैं, अब देखना. अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिल सकता, बट प्रोबेबिलिटी मिलने की बहुत कम है. चलो अब देखो, अब मैं 2s पे जा रहा हूँ.
yes, ठीक है। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 2s। तो जब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ऐसा है। देखो आ गया ना 0, साई स्क्वायर की वैल्यू 0। तो अभी मैं समझाऊंगा ये क्या है। हाँ ये क्या है। तो अगर मैं 2s बना दूं, ये मेरा न्यूक्लियस बना लेता हूं इस बार, ठीक है। अगेन नियर द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। Then it keeps on decreasing. Yes or no? Yes, sir. There is a point जहाँ पे there is a region where the probability of finding the electron is 0. That means मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये वाला region जो है मेरा ये वाला, राइट से दिखा रहा हूँ। तो मतलब इस region में क्या है? Probability of finding the electron is 0. और अगर क्योंकि ये स्फेरिकल है, यस और नो, यहाँ तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल भी लग रहा है, ये स्फेरिकल है। सपोज इसका रेडियस r उस रीजन का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ऐसे मैंने क्यों बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर से प्रोबेबिलिटी मिलेगी, उसके बाद फिर से मिलेगी। समझ आया? अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट जहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू नेग्लिजिबल, क्या होगा? नेग्लिजिबल। इसका मतलब there is a region where the probability of finding the electron is minimum। हम जीरो नहीं बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम से अप नियर जीरो, वो लिमिट जीरो से टेंड कर रहे हैं। अब इस रीजन को मैं बोलूंगा क्या? नोड। और ये कैसा नोड है? स्फेरिकल नोड। और रेडियस भी है। कैन आई कॉल इट रेडियल नोड? Can I call it radial node? Okay. So I'm calling it radial node. अच्छा, नोड से कभी कंफ्यूज मत होना कि नोड एक पॉइंट है, नोड एक रीजन है। वो प्लेन भी हो सकता है, वो पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीरो प्रोबेबिलिटी वाला रीजन इसलिए है क्योंकि दूसरे शब्द से रिपल्शन का ऐसा कुछ। हाँ, तो सकते वो आगे आने वाला है, क्योंकि इसमें तो नहीं है। हाँ, इसमें क्यों है? हाँ, क्योंकि 2p है तो रिपल्शन। हाँ नहीं, जब आप ये फंक्शंस को सॉल्व करते हो तो उसमें एक जगह ऐसा होता है जब आप साई स्क्वायर करते हो तो वो जीरो आती है। एक्चुअली डबल डिफरेंस मैंने वही तो बताया, डबल डिफरेंस फिजिकली क्यों आ रहा है उस रीजन में जीरो प्रोबेबिलिटी? क्योंकि जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो वहां पे एक जगह जो साई की वैल्यू जीरो है वो साई स्क्वायर भी तो जीरो ही होगा। क्योंकि है तो ये जिसने दिया है ना वो केमिस्ट नहीं था, वो तो फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन है। उसने तो अपनी इक्वेशन दे दी थी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। साई उसने अपना काम खत्म कर दिया साई बता के। अब केमिस्ट आए तो उन्हें तो फिजिकल वर्ल्ड को समझाना है ना, तो उन्होंने समझाया अच्छा ठीक है ये वो रीजन है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जीरो है। और फिर ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स केमिस्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो, वैसे इसका थोड़ा सा रीजन आपको अभी आगे भी मिल जाएगा जब मैं डी समझाऊंगा, ठीक है। तो कैन आई कॉल इट रेडियल नोड? अच्छा ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूँ किसी भी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो होते हैं आपके n minus 1। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए n क्या था? 2 minus 1 1। तो इसमें एक नोड था, उसमें नहीं था ना, उसमें जीरो आ रहा था, इसका उसमें कोई नोड नहीं। तो टोटल नंबर और चलो अभी ऐसे रहने दो क्योंकि एंगुलर की बात हो है, समझ आ गया? तो यही बता दो, ये जो 1 है, ये जो 2s के लिए 1 नोड आया, दैट इज रेडियल नोड, दैट इज रेडियल नोड, बट वी हैव एंगुलर नोड आल्सो। तो एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? दैट इज द वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l फॉर s? 0। तो यहाँ पे कोई एंगुलर नोड नहीं है, यहाँ पे कोई एंगुलर नोड नहीं। चलो अब 2p पे आ जाए। 2p के लिए बताओगे मुझे टोटल नोड्स कितने हैं? और एंगुलर नोड? L value for P, what is L value for P? Yes, तो 1। तो इसका मतलब वो जो 1 नोड है वो एंगुलर नोड है। देखो कैसे, बस यही समझना है।
पी और डी में बस यही समझना है कि कैसे कौन से नोड्स हैं। सपोज आप एक ही ले लेते हैं, उसी से सारे काम हो जाएंगे। ये मेरा पीएक्स है, ये न्यूक्लियस है, यस यस। अब एक एंगुलर कौन सा, अगर मैं एक प्लेन पास करता हूँ ऐसे यहाँ से सेंटर से, मतलब ऐसे प्लेन करता हूँ, तो वो नोड नहीं है क्योंकि वहाँ पे एट द है नहीं है। देखो इसको मैं ऐसे दिखा दिया, अब इसको सिंपल दिखाऊंगा ऐसे। ये मैंने प्लेन पास कर दिया, ठीक है। क्या ये नोडल प्लेन नहीं है? अच्छा, इसके फीचर्स भी पूछे जाते हैं। क्या क्या फीचर्स है? पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, पासेस थ्रू द न्यूक्लियस। क्योंकि जब मैं केमिकल बॉन्डिंग में आई विल स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अभी हम ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नोट्स कर रहे हैं, वहाँ पे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नोट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं यही चीजें पूछूंगा। और फिर मैं आपको सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज भी पूछूंगा यहाँ के नोट्स में और वहाँ के नोट्स में। तो इसे ध्यान से देखो, passes through the nucleus. Okay. तो ठीक है, कितने हो गए? एक ही है। अच्छा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इन लूप्स में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। सेम गोज फॉर px and py। अच्छा अब जरा यहाँ आ जाओ, ये इंटरेस्टिंग है। 3s पे आओ, सॉरी 3d पे आओ। 2d तो होता ही नहीं, पहला 3d है। चलो टोटल नोड्स कितने हैं? ठीक है। और एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स अब dxy dyz और dxz तो सेम है, तो एक ही देख लेते हैं। चलो इसमें बताओ मुझे नोडल प्लेन्स, the axis, the card, okay, the axis। तो यही है, मतलब ये और ये, ठीक है। अच्छा अब dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में आ जाते हैं। Tell me, क्यों? इसमें बीच से ये वाला नहीं दो प्लेन्स के बीच the diagonal, हाँ the diagonal nodes। चलो यहाँ आ जाओ, इसके नेक्स्ट पेज पे। चलो यहाँ सोच समझ के बताओ। Yes, भाविका, गायत्री, टेल मी। सर इसमें तो लगने लगती कोई नहीं। देखिए एम्पिरिकल नोड्स की वैल्यू तो 2 है, तो हो गया तो जरूर कौन से ये बताना है। प्लेन नहीं होगा, प्लेन ही है। वो एंगुलर नोड्स आए हैं ना, तो दो नोड्स तो बतानी ही है, तो बताओ कहाँ है। नोड्स तो प्रेजेंट ही है, तभी तो वैल्यू। हाँ नोड जरूरी है प्लेन में। क्या क्या ऐसे प्लेन, कौन सा प्लेन? ये प्लेन, ये प्लेन नहीं हो सकता। ये जो रिंग है ये xy प्लेन में, ये ऐसे है, तो ऐसे वाला तो इससे टकरा जाएगा ना। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस रिंग में। अगर आप ऐसे वाला बोल रहे हो, देखने से यहाँ 2D लग रहा है, वैसे तो ये रिंग तो xy प्लेन में है। Can I? हाँ, just one more minute. और सोचो, देखो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता z एक्सिस, क्योंकि लूप्स है उस z एक्सिस में। xy वाले में भी नहीं जा सकता क्योंकि ये ऐसे है, तो कहीं से भी करोगे तो वो उससे पास होएगा, वो नहीं हो सकता। हाँ, तो वो सब कैंसिल हो गया। डायगोनली भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर ऐसे है तो डायगोनली कैसे होगा? वो भी नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? देखो अगर मैं यहाँ से कोन्स पास कर दूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कोनिकल प्लेन है। इसे समझ लेना सीधा है। अब तो देखो यहाँ से अगर मैं कोन्स पास करूँ वही ऐसे जो किसी से टच नहीं
है ना? तो इसमें क्या है? 2 conical और ये important नहीं, कौन स्ट्राइक नहीं करेगा ना? These are your conical plates. ये ऊपर वाला को चुना JEE है। तो ये क्या है आपके? conical plates। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें समझनी है आपको। देखो अभी तक हमने ऑफ वो प्रिंसिपल देखा, वो वैलिड है हर एक स्पीशीज के लिए एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो तो एनर्जी डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, एनर्जी डायग्राम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दोनों ही आएंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है? उसमें हमने देखा सबसे कम क्या है? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद, लेकिन इसके लिए 2p और 2s दोनों ही सेम एनर्जी के, सेम एनर्जी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। देन वी हैव 3, 3s, 3p, 3d सब सेम एनर्जी। हाँ तो हमने देखा था 3s कम, उसके बाद 3p, then 3d। अगर मैं आपसे पूछूं what is the number of orbitals? How many orbitals are there in the second excited state of hydrogen? Can you please tell me? This is your ground state. This is your first excited state. This is your second excited. Can you please tell me how many orbitals are there in the second excited state of hydrogen? क्वेश्चन दोबारा बताओ। देखो मैं बोल रहा हूँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में कितने ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स, 5 for D, 3 for P and 1 for S। नहीं है? यही क्वेश्चन आई थिंक आपका नहीं था नीट में, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, नीट में भी आ सकता है। This has been asked in the JEE, ठीक है? And this is something not very difficult, तो कि नहीं आ सकता। This is important। और NCERT ने भी इसको ब्रीफ में समझा रखा है, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बोल सकोगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? तो how many orbitals are there in the second excited state? 9। अब पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली इलेक्ट्रॉन के लिए आता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन में तो वही फॉलो होगा, सबसे पहले 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s। तो इतना ही पूछे। अच्छा इसमें अगर मैं पूछूं how many orbitals are there in the second excited state for multi electronic species? कौन बोलता? कितने? 3 आवाज आई मुझे कहीं से। आपने तो बोला 3, अभी तो बोलते 3 होगा। अभी बोलो। हाँ तो 3 तो होगा, तो P है तो 3 होगा। जब 2P है तो 3 तो होगा, फिर ये हो गए 3। ये कंप्लीट क्वेश्चन था जी, मतलब ऑप्शन से 9 3 3 9 4 5 ऐसे करके, तो आपका भी आ सकता है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ठीक है? तो ये कितने ऑर्बिटल्स हो गए थे सेकंड एक्साइटेड स्टेट? ठीक है? दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड उसमें वो 0 साथ में क्यों? कौन से साथ? 3 हाँ, ये बोहर का है और ये उसकी लिमिटेशन है। क्योंकि बोहर ने, मैं वही बता रहा हूँ, बोहर और जब आपकी कैलकुलेशंस हुई, जो आपके ऑप्पो प्रिंसिपल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये सब क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एटम के रिजल्ट है। बोहर ने आपका जो कंसीडर करा है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू आपको पार्टिकल कंसीडर कर रहा है, तो उसके तो बोहर का ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? और इसीलिए मैंने आपको बोला कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट,
क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो will remain here only. हाँ मतलब Electron तो will remain here only. ठीक है. But this is सर अगर पूछा कि फोर्थ एंड सेकंड स्टेट में तो फोर्थ तो फोर्थ में 4s 4b 4d और 4f भी आ जाएगा. मैं 4 का नहीं पूछा. फर्स्ट स्टेट पूछ लेता हूँ आपकी. शायद वो भी नहीं पूछा. But this is important. ठीक है. और ये आपके क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट तो आएगा कि the orbitals are arranged in the increasing order of energies. In the second chapter, shapes हो गए, notes हो गए, electronic configuration done, quantum numbers done. So almost everything is done. चल, now we can practice from the first chapter. हर एक टॉपिक के क्वेश्चन है, ठीक है? मुझे डाउट भी देता हूँ, मुझे बता देना। मैं एक बार क्वेश्चन करा दूँ, वैसे मुझे लगता नहीं फिर उसके बाद डाउट्स रहेंगे। आपने बोला था कि न्यूट्रलाइजेशन के किसने क्वेश्चन बोले थे मुझसे? चलो देखो, 50 ml of 50 ml of 0.5 oxalic molar 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of NaOH solution. The amount of NaOH in 50 ml of the given solution, NaOH solution is चल ऐसे था कुछ step number 1 is basic one no writing the reaction लिखिए अच्छा ऑक्सैलिक एसिड में लिख के बता दे COH और COH हाँ तो याद ऐसे लिख दो ऐसे it is reacting with NaOH so acid plus base gives salt in water so salt क्या होगा obviously H हटा के Na yes or no plus H2 step number 2 is balance करो ये 2 है तो ये भी 2 हो गए तो 4 हो गए तो बैलेंस्ड अब काम है हमारा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखना 50 ml of 0.1 मतलब मोलारिटी भी गिवन है 0.5 मोलर और वॉल्यूम भी गिवन है 50 ml is needed to neutralize that ओके देखो अमाउंट निकालना है हमें मोलारिटी नहीं पता NaOH की तो सबसे पहले काम है कि मोलारिटी ही निकालना है NaOH की ठीक है अब एक बात बताओ आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ये चलो मत करो आप क्या करो इतना तो पता है ना कि that 1 mole of oxalic acid requires 2 moles of NaOH तो मोल्स निकाल लेते हैं oxalic acid के सबसे आसान है निकालो देखो मोल्स क्या होता है सॉरी मोलारिटी क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम मोल्स अपॉन एंड वॉल्यूम इन लीटर तो अगर मोल्स निकाल लो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर मोलारिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है लाइक आई सेड मोल्स के अलावा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं
what it is. ना हाँ तो फिर तो 0.025 मोल्स आ गए, ठीक है। ठीक है, मोलारिटी 0.5 into 50 ml है, तो डिवाइड कर दोगे 1000 से लीटर में चेंज करने के लिए, तो 0.00। अब मैं बोल सकता हूँ 1 mole requires 2 moles, तो 0.025 would require how many moles? 0.050। हाँ, तो बताओ कितने हो गए? 0.050। ठीक है, अब हमारे पास मोल्स आ गए NaOH। हमारे पास वॉल्यूम नहीं है, उससे मैं क्या निकालूंगा? मोलारिटी। मोल्स है, वॉल्यूम है, जल्दी से मोलारिटी बताओ। मोल्स है एंड वॉल्यूम है, मोलारिटी निकालो। अगेन वॉल्यूम मिलीलीटर में है, आपको तो 2 मोलर 2 मोल्स आ गए उसका। ये देख लो, यहाँ पे 2 मोल्स आ गए, मतलब इसको मैं सर्कल कर देता हूँ कि हमने निकाला है, ठीक है। मोलारिटी आ गई तो गिवन मास निकाल सकते हो। फॉर्मूला देखो मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। और वॉल्यूम ये वाली यूज करनी है 50 ml, तो 50 into 1000 हो गया। चलो मोलारिटी पता है आपको, लिख ही लेते हैं, कितनी है? 2। गिवन मास इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। मोलर मास ऑफ NaOH is 23 plus 16 40 हो गया, प्लस 1 तो है, ठीक है, into 50 into 1000। जल्दी से बताओ WP कितना है? चलो तो पहले हमने इसमें ऑब्जर्वेशन की मोलारिटी निकाली, नहीं वो सब गिवन, हमने मोल्स निकाले, मोल्स निकाली, हाँ। ठीक है। फिर हम क्योंकि देखो अमाउंट निकालना है तो हमें मोलारिटी पता होनी चाहिए ना, उस हमने ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करके मोलारिटी निकाली, ठीक है। अच्छा ये ऐसा ही नहीं है, अच्छा आप इसलिए भी कंफ्यूज हो लोगे, देखो इधर देखो, ये वही तो है M1V1 = M2V2, वही तो लगाया मैंने, वही तो, लेकिन आपने एक गलती कर दी होगी उसमें। क्या? आपने 2 नहीं लिखा होगा, ये इसलिए आप कंफ्यूज ना हो ना, क्योंकि इसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाती है। अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए ताकि आप ये सोचो ही मत क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, M1V1 मत लगाओ। चलो अभी फॉर मैंने ऐसे नॉर्मल कर दिया, मैंने मोल्स निकाल लिए। 1 मोल रिक्वायर्स 2, इतना मोल्स रिक्वायर्स 1, सिंपल। अब मेरे पास के मोल्स आ गए तो मैं मोलारिटी निकाल, ठीक है। अब ये वैसे ही है, M1V1 से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती हो जाएगी। M1V1 = M2V2 नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे बताओ? 2 M1V1 = M2V2, क्योंकि देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, इसलिए ताकि आप कहाँ 2 लगाना है ये कंफ्यूज हो रहे, इसलिए मैंने बताया नहीं। 1:1 का होता मोलर रेशियो, मतलब मोल्स का रेशियो, तो मैं बता देता हूँ M1V1 = M2, पर आप ये कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको किस साइड 2 लगाना है, इसलिए रखो ही मत वो कंफ्यूजन, क्योंकि आपको ऑप्शंस में वो आंसर जरूर दिया होगा जो आपने सॉल्व किया होगा। हाँ सच में ऐसे होता है, तो ठीक है, तो इसलिए मैंने वो दिमाग में ऐसे करो, सिंपल मोल्स निकालो। और ये तो आपको पता है, स्टोइकियोमेट्री में सीखा है, 1 मोल रिक्वायर्स 2, so this much mole requires what? सर अगर M1V1 = N2V2 से करेंगे N1 कहाँ से आ गई? तो मोलारिटी है, मतलब जैसे नॉर्मलिटी में होता है N फैक्टोरियल से, तो वो इसमें कहाँ लगाओगे? हाँ वो तो समझते हैं ना, इसमें नहीं, नॉर्मलिटी का अलग। ठीक है, चल भी अब मुझे ये नहीं समझ रहा है कि लास्ट में मोलारिटी का फॉर्मूला क्यों लगाया? हाँ क्योंकि हमें WB निकालना है। ये तो आप वैसे भी निकाल लोगे, अगर आपने M1V1 से भी मोलारिटी निकाल ली तो फिर मास कैसे निकालोगे? मास निकालने के लिए तो हमें चाहिए मोलारिटी, इसलिए तो निकाली ताकि हम मास निकाल सकें। अब मोलारिटी हमारे पास 2 आ गई, ठीक है, और निकालना कितने वॉल्यूम में? 50 ml, तो यहाँ 50 लिख दिया। मोलर मास आपका 40 है, कितना हो गया? 4। अच्छा 4 लिया। चल अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसमें आप M1V1 लगा के देखो, इसमें हमने मोल सीख लिया, अब उसमें M1 से V1 से करना, तब मैं देखूंगा ठीक करोगे।
अगर ठीक कर दिया तो मैं यहाँ भी लगा लूँगा, फिर आपका एक स्टेप बच जाएगा। हाँ ठीक है चलो, अब मैं दूसरा जो दे रहा हूँ उसमें M1V1 यूज करता हूँ, देख रहा तो नहीं था? इसमें आप M1V1 का कॉन्सेप्ट लें। चलो इतने मूवमेंट में इतने एक ही बार 60 ml of a mixture, 60 ml of a mixture। अच्छा मैं बहुत सिंपल वाले नहीं करा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है वो वाली करो। 60 ml of a mixture of N2 and nitric oxide, of nitrous oxide N2 and nitric oxide was exploded। मैंने जानबूझ के नाइट्रिक लिखा है। Was exploded with excess of hydrogen। Exploded, अच्छा याद रखना ये exploded with oxygen नहीं है, exploded with excess of hydrogen है, with excess of hydrogen। If 38 ml of nitrogen was formed, if 38 ml of nitrogen was formed, find the volume of each gas in the mixture। Find the volume of each gas in the mixture। Done। Step number 1 is लिखना है। चलो देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन, ठीक है, और आपको दे भी दिया वैसे नाइट्रोजन बनेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लस H2 एंड सेकेंड नाइट्रिक ऑक्साइड इज नो, NO3 तो कुछ नहीं होता, नाइट्रेट होता है, NO3 नेगेटिव, NO plus H2, yes, N2 plus H2। हो गई reactions। Step number 2 is stoichiometry। no balance। Balancing। तो first वाली तो I think balance ही है, second वाली नहीं। अब ठीक है, balance। चल सर आपने एक बार लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें वॉल्यूम का वो था 22.4 समथिंग एसटीपी वाला था। हाँ, 1 mole of any gas at STP is 22.4 liters। वो एक्चुअली मैंने बताया था वो स्टार्ट, क्योंकि मैं SI जब SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बता रहा था तो वहाँ पे वैसे वो यहाँ से ज़्यादा यूज है ना गैसियस स्टेट में होगा, वहाँ पे NTP होगा, STP होगा, SATP होगा, तो तीनों बताऊँगा गैसियस स्टेट। इसलिए तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा जल्दी खत्म किया ताकि हम एटलीस्ट, हाँ बताओ। अच्छा टोटल तो 60 है, उसको मत खराब कर देना, 60 में से ही होगा कुछ कुछ। यस मनाल, टेल मी। अच्छा मनाल तो नहीं होगा। ओके श्री, सॉल्विंग, अच्छा ठीक है देखो, क्योंकि अब हमारे पास जल्दी सारे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं जल्दी पूरा कर रहा हूँ। N2 को x समझ लेते हैं तो NO कितना हो जाएगा
60 minus x, yes or no? टोटल तो 60 है। तो देखो अब स्टोइकियोमेट्री पे आ जाओ। वन वॉल्यूम, क्योंकि हम सब वॉल्यूम में कंसीडर कर रहे हैं, वन वॉल्यूम फॉर्मिंग वन वॉल्यूम, सो x वॉल्यूम विल फॉर्म वन वॉल्यूम। अच्छा यहाँ x वॉल्यूम, x से हमें क्या मिल रहा है? कोई दिक्कत? 60 माइनस x, अच्छा 60 माइनस x से हमें कितना मिल रहा है? हाफ। देखो या इसको ऐसे भी बोल सकते, इसको ऐसे भी बोल दो, two volume giving you one volume, so one volume is giving you half, and 60 minus x volume will give you 60। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ से मुझे इतना नाइट्रोजन मिल गया और यहाँ से मुझे इतना नाइट्रोजन मिल गया, दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल 38 के में 38। ठीक है, चलो ऐड करो। x plus 60 minus x upon 2, जो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लूँ, l से ले लेगा, is equal to 38 के में। तो x plus 60 is equal to ये कितना है? 76। So x comes out to be 16 ml। अच्छा ये 16 ml N2O है, तो दूसरा वाला तो 44 हो जाएगा, 16 44। ठीक है, एक अगर 16 है तो दूसरा 44। तो ऐसे ही ऑप्शंस थे 16 44 44 16। ठीक है, आ गया? सर वो अपना 44 आएगा, वो कैसे मतलब? ये 16 है तो टोटल 60 है, तो 60 माइनस 16 44। तो अगर क्योंकि मैंने N2OX ले रखा है। अच्छा कभी-कभी क्वेश्चन दे ना ऐसे भी पूछ लेता है, यहाँ तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ ईच गैस, कभी-कभी वो एक ही की पूछेगा कि ये मत भूल जाना x कौन सा लिया था। ठीक है, वो ध्यान से रख थोड़ा। तो x अगर 60 है तो 60 माइनस x कितना हो गया? 44। क्योंकि टोटल तो 60 होता है। नेक्स्ट, अब आप बोल रहे थे ना मुझसे एक क्वेश्चन नॉर्मलिटी का मिल गया मुझे, चलो देखो। If 0.98 gram of H2SO4 is present in 500 ml, solution, find normality. Find normality. चलो तो easy है। Is present in 1000 gram of water. Find molarity if density of the solution. ये density है. Solution is 1.12 gram. Sorry. अच्छा कभी-कभी ऐसे भी आ सकता है। देखो एक चीज समझाता हूँ आपको। देखो अगर मैं बोलता हूँ सेमी मोलर, इसका मतलब आपको मोलैरिटी गिवन है, ठीक है, वो है हाफ। ठीक है, अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब मोलैरिटी हाफ गिवन है। और अगर मैंने लिख दिया बाय मोलर, उसका मतलब भी मैंने मोलैरिटी दे दिया आपको, कितनी हुई? अगर मैं बोलूँ डेसीमोलर, वैसे डेसीमोलर आएगा नहीं, बट अगर मैंने दे दिया डेसीमोलर तो 1/10 आपको ऑलरेडी गिवन है मोलैरिटी। कहाँ पर? फर्स्ट वाले का कितना आया? सबका आ गया 0.04। यस, अच्छा देखो नॉर्मलिटी क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, अगर ml में वॉल्यूम है तो मैं ml में लिख लेता हूँ। और चलो तो W तो गिवन है 0.98
इक्विवेलेंट मास होता है, वेट होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 होता है H2SO4 का, और एन फैक्टर कितना है 2। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर व्हिच इज 2। वॉल्यूम इज 500 और वो 2, तो ये तो 2 लिख दो डायरेक्ट, तो ये 49 हो जाएगा। 49 से करूंगा तो 0.02 into 2 which is 0.04 नॉर्मल, ठीक है 0.04 सेकंड। In the next class we'll continue with this, ठीक, हाफ एन आवर डिवोट कर देंगे पिछला वाले को, और फिर पीरियोडिक क्लास है वो बहुत सिंपल है। Research academy के questions क्या तो रहा हूँ Sir, 2.05. 2.05, okay 2.05, anybody else? तो मैं कंफर्म कर दूँ। ये क्या है? 1.12 density of the solution। अभी तक मुझे एक आंसर मिला है 2.05। फॉर्मूला सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दिया करो। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, डेंसिटी वाला रिलेशन भी याद कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मत करो। कितना याद करोगे नीट के पेपर में, कितना याद रहेगा? ये फॉर्मूला है बस, मुझे ये पता है, मैं और कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशंस भी डेंसिटी के साथ। अच्छा यूरिया में दिक्कत आ रही है। यूरिया इज NH2CO NH2 NH2CO NH2। तो देखो गिवन मास कितना है, थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। गिवन मास कितना है 120, यूरिया का मास 60। कुछ चीजें तो याद कर लो, यूरिया, शुगर, H2SO4, बस ये हो भी जाएगी यार, ठीक है चलो। और हाँ ग्लूकोज 4-5 याद रखो, और वॉल्यूम नहीं पता, डेंसिटी पता है, मास पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मास कितना है जल्दी बताओ। डेंसिटी कितने 1.12, मास कितना है? अरे वो तो सॉल्वेंट का है। अच्छा सॉल्यूशन का 1120 सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है 1120 डिवाइडेड बाय निकालनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी आ गई जल्दी बताओ? 1000 है, तो 1000 को यहाँ रख लो और ऊपर भी 1000 ही है, तो 2 आ गया। किसका 2.05 आ रहा था? नो 44 ml NO 2.05 आ रहा था ना, किसका? शिरीन, गायत्री। Yes, sir, it's fine. ओके गायत्री, तो इट्स 2 ओनली। चलो ठीक है, इतना तो आप ऑप्शन देख के बता दोगे, इतना भी नहीं आएगा कि 2 और 2.05 ऑप्शंस। ठीक है चलो। सर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मैम ने क्लास में कराए थे। क्वेश्चन फर्स्ट, इतने आसान क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ आए थे उस चलो टाइम। चलो ये लिख दो यहाँ। हाँ स्कूल वाले एनसीईआरटी को बहुत बुरी तरह फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं मतलब 5 Right. हाँ देखो a प्लस, ये बहुत आसान है, अब आप लोग ही बता देना। a प्लस b2 इज ab2, आपको LR बताना है, ठीक है। 200 atoms of A plus 100 molecules of B, जल्दी से LR बताओ। अच्छा आप सोच रहे थे मैं आगे वाला 2 mole of A plus 3 moles of B
फर्स्ट वाले में कौन है? बी होगा, ठीक है। 1:1 है ना, ठीक है, समझ आ रहा है? 1:1 है तो ऑब्वियसली अगर 200 है तो ये भी तो 200 होना चाहिए था ना, इसमें मतलब a एक्सेस में है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको 1 से मतलब, ठीक है। तो b हो गया, सेकंड वाले में बताओ, a हो गया, थर्ड वाले में बताओ, a हो गया, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ वाले में बताओ, a। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आ गया, देखो ये वाला तो इट्स फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला अच्छा है, ये वाला करो, लिमिटिंग रिएजेंट का ही है और आई थिंक ये आया हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एंड आई डोंट इवन रिमेंबर द पेपर। हाँ क्या है, देखो ये वाला 60 ml of nitrogen reacting with, मैं प्लस लिख रहा हूँ, reacting with 60 ml of hydrogen, आपको बताना है find out the volume of NH3 produced and volume of, अच्छा ये तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये बता दिया तो फिर तो क्वेश्चन जल्दी से तो हाफ एन आवर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है, डेली। केमिकल बॉन्डिंग से तो क्लास ही में सारे क्वेश्चंस हो जाया करेंगे बिकॉज इनऑर्गेनिक इज मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू कर सकते हैं। 120? So I have got one answer, 120 ml. What about others? ये बच्चे दूसरी क्लास में भी चले जाते क्या ऑनलाइन? स्टार्टिंग में 6, 5, 4, 3 है। Yes, चलो। चलो 120. What about 120? You want more time? 1 minute? ठीक है। Yes, Gayatri, Bhavika, Anjana, tell me. Step number 1. Step number 2. अच्छा मोल्स मत निकालना, वॉल्यूम के टर्म्स में दे रखे। वैसे मोल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है बट चले 80 होना चाहिए, 80 और आपका 60, 80 और 120। So 120, 60, 80 वो तो है ही, ठीक है। चलो और 80 आपने बताया ना, और 60 किसने बताया था? चलो अब चले। Step number 1 is step number 2, ठीक है। अब लिखो ये 60 ml गिवन है, ये भी 60 ml गिवन है। पहले एक बात बताओ, 1:3 में ये रिएक्ट कर रहे हैं, राइट? तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर ये 60 है तो इट शुड हैव बीन 180, बट ये 180 से कम है। इसका मतलब LR क्या है? इसका मतलब LR क्या है? LR क्या है? हाइड्रोजन। अगर LR हाइड्रोजन है तो उसके अकॉर्डिंग स्टोइकियोमेट्री लगेगी। 3 moles giving you 2
Well, 3 volume. Moles and 3 volume giving you 2 volume, so 60 volume giving you. Sadly, जो A, B, C, D ऑप्शन था मैं यहाँ पे नहीं लगाया. ठीक है, ये कितना हो गया? 40 ml. अच्छा, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो ये था कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट, क्योंकि नाइट्रोजन एक्सेस में, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड? टेल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड. 40 सिंपल. देख 1:3 में तो अगर ये 60 है तो इसका तो सिर्फ 20 ही रिएक्ट किया ना, तो 40 तो अनरिएक्टेड रह गया. आ गया? इधर से मुझे स्ट्राइक करके आपके क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन. कैसे अनरिएक्टेड? अगर ये 1:3 में है तो 60 तो पूरा ही एग्जॉस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 60 अगर ये यूज हो रहा है तो इसका तो सिर्फ 20 ml यूज हुआ ना, तो 40 तो अनरिएक्टेड रह गया. ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्यूशन दे रखे. क्वेश्चन नंबर 7. मुझे पता नहीं मैं कितने कर लिया आज. हाँ, तो क्या यूज हुआ है? The molecular weight of oxygen and sulfur dioxide है इतना, at 15 1 liter of oxygen contain n liter the number of easy सा है, इसमें वैसे ही बता दूंगा. देख लो इधर. Avogadro's law क्या है? Avogadro's hypothesis बोलो ये लोग बोलो that equal volume of all gases contain equal number of molecules at STP. इसका मतलब क्या? अगर कंडीशन STP है, ठीक है, तो आपका जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 100 ml ऑक्सीजन में x molecules of oxygen, ठीक है, x molecules of oxygen, तो STP पर ही 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के? अगर STP पर 100 ml ऑक्सीजन में x मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होंगे? x अपॉन 2 हो जाएगा. यही तो लॉ है. Equal volume of all gases contain equal number of molecules at STP. अगर STP है तो 100 में x होते, 50 कर दिया अगर मैंने तो x बाई 2. और अगर मैं यही अगर ऐसे बोल दूं 200 ml ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के STP पर? 2x. ये अगर STP पर यही तो लॉ है. Equal volumes of all gases contain equal number of molecules at STP. तो अगर 100 ml ऑक्सीजन में x मॉलिक्यूल है तो 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड में भी x होंगे, 100 ml अमोनिया में भी x होंगे, 100 ml इसमें भी x होंगे. अगर मैं इनकी वॉल्यूम्स को ऊपर नीचे करता हूं तो वो डबल है, हाफ हो जाएगा. ऐसे ही अगर मैं इसको 25 लिख दूं तो 1/4 कर देना x by 4. Yes, thank you so very much. We'll meet in tomorrow's class. We'll continue from tomorrow.